Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss last 7 days plan, last 7 days mindset for INI set exam, which is going to held on 14th November 2021. So we will discuss a mindset. What should your mindset for your exam in these 7 days? How you should approach these last 7 days before your exam. On seventh day, you have exam INI set. You have that game to win that. Okay, so you have that game on that day, and you have to win that game. So what should be your mindset? What should be your approach? So we are going to discuss that plan, that mindset. So my dear friends, if you are new to my channel, then press on subscribe button and press on notification bell icon. And don't forget to like this video, and you must watch this video till end if you are going to be a part of INA set on 14th November. So let's start our strategy. Let's start our plan. First thing that it is your time. Stay positive, stay focused, stay brave, stay ambitious, stay strong. Let's win this race. So ये टाइम आपका है. पहला पॉइंट क्या है? यू मस्ट बी पॉजिटिव, यू मस्ट बी फोकस्ड, यू मस्ट बी ब्रेव, यू मस्ट believe in yourself that yes, I will do it, I can do it. On seventh day you have to prove yourself that yes, I am the real king of this exam. Yes, I can do it, I can crack it. So you must have that enlightenment in yourself that yes, I will do it, I can do it. And in these 7 days, you have to prove yourself. Yes, I am positive. Yes, I am focused. Yes, I am brave. Yes, I am ambitious. Yes, I am strong. And yes, I will win this race. So you must have these points in your brain every time. Yes, on seventh day, I have exam. So I am totally positive, totally focused, totally brave, totally ambitious, totally strong, and I will win this race. So my dear friends, let's discuss about that 7 days plan. I already made a video 15 days plan for INI set. So if you are part of that video, if you are following that schedule, then in that schedule I already provided you that in last 7 days what should you do. 15 डेज का शेड्यूल था, उसमें हमने स्टडी किया था कि 15 डेज को कैसे अप्रोच करें. ठीक है, तो 15th डे को तो हमारा एग्जाम ही है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10, 11, 12 और 13 है. ओके, और 14 को हमारा है एग्जाम. सो 14 से पहले जो ये हमारे पास 6 डेज हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो जो मेरा जो प्लान था 15 डेज का, उसके हिसाब से मैं ओबीजी, ऑर्थो, पीएसएम रेडियो ईएनटी, पीएसएम डर्मा, एफएमटी पीडिया, ये सब्जेक्ट खत्म करने थे 11 नवंबर तक. उसके बाद में 12-13 का हमारा था इमेजेस, इंस्ट्रूमेंट, क्लिनिकल्स, माइक्रो फार्मा का ओवरव्यू, बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू. ओके, तो ये था हमारा लास्ट 2 डेज का, और उससे पहले हमारा ये प्लान था. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है. ठीक है, वो इस वीडियो के लिए नए हैं कि 15 डेज का प्लान मेरा अपना खुद का है, और अब मुझे 7 डेज का प्लान चाहिए. मैं कवर कर चुका हूँ सब कुछ. आई ऑलरेडी फिनिश्ड एवरीथिंग एंड नाउ आई वांट रैपिड रिवीजन. व्हाट should I do? How can I do? What should I do in these 7 days? Then, my dear friends, if you already covered everything, you are feeling that yes, I am done. अगर कल एग्जाम हो जाए तो मैं कल ये एग्जाम दे दूंगा. Then you are, if you are that student, then you must, what you must do? You have to give 3 hours of your day. Okay, means you have to give 180 minutes, 180 minutes of your time of your day to 200 question. Attempt 200 question every day for these last 6 days. एक दिन है, 13th नवंबर को छोड़ दो, उस दिन तो हमें कुछ करना नहीं है. जस्ट रिलैक्स योर ब्रेन. ओके, उस दिन अगर कुछ करने का है तो भी वो क्या है? इमेज है, इंस्ट्रूमेंट्स है, क्लिनिकल थिंग्स है, इमरजेंसीज है, ये चीजें देखनी है. ठीक है, उस दिन कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना. ठीक है, लेकिन तब तक जो पहले 5 दिन है, इफ यू आर सेइंग दैट आई हैव डन एवरीथिंग, I am overall done my completed my every subject, my revision is up to date, then you can
approach 3, you can give 3 hours of your day and you must attempt 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जीटी का मैं नहीं बोलता कि जीटी दो, ठीक है, अगर जीटी दे भी रहे हो देन डू नॉट डाउनग्रेड योरसेल्फ, just stay positive, not compare yourself, you must not compare yourself that yes उसके इतने मार्क्स है, ये है वो है, मेरे तो इतने कम मार्क्स हैं, नहीं, हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ जीटी देना है। जीटी देने के बाद 200 क्वेश्चन हुए, ठीक है, सपोज कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, और जितना आप एक्सपेक्ट करें उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देन यू मस्ट नॉट डाउनग्रेड योरसेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, यस 200 क्वेश्चन किया है, ठीक है, अपना पूरा टाइम लो, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको एनालाइज करना है, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन रीड करो, गो थ्रू करो, ठीक है। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और 200 में से आपके मान लो कि आपने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 8 नवंबर को, कल ही, ठीक है, और 200 में से मान लो कि आपके 150 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हैं और बाकी के ऊपर के जो हैं कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ भी दिए, कुछ आपके गलत हो चुके हैं, ठीक है, तो अब क्या करें, तो जो गलत हुए हैं, जो सही हो गए उन्हें छोड़ो, जो गलत हो चुके हैं उनकी एक रीडिंग लेनी है, सिर्फ ओनली वन रीडिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम दैट, यस जस्ट वन रीडिंग, रीड दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, क्योंकि अगर क्वेश्चन है उसका आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन को रीड करो, कवर करो, वो टॉपिक कवर, explanation read करो, वो टॉपिक कवर, okay, then you have to attempt 200 question every day for last 5 days, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11, 12 तक 5 डेज है, 5 डेज में 200 क्वेश्चन एवरी डे अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसको आप जीटी बोल दो चाहे खुद का टेस्ट बोल दो, यू हैव टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चन, ओके। और अगर सब कुछ कर भी रखा है ना, कि सब कुछ कर रखा है, देन माय डियर फ्रेंड्स ये इमेजेस और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये जो लास्ट के 2 डेज में है ना, इनको इधर उठा लो ना। अगर इतना ही है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, अगर सब कुछ नहीं किया तो इनको हम लास्ट के 2 डेज में ही रखेंगे। अगर मेरी ही स्ट्रेटेजी, मेरा ही प्लान फॉलो कर रहे हो तो ऐसे ही चलने दो इसको, लास्ट के 2 डेज में हम इमेजेस इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं। इमेजेस हमें किस सब्जेक्ट की करनी है, सब सब्जेक्ट्स की। You must have a PDF of all 19 subject. You must go through. आपको सब इमेजेस के थ्रू जाना है, ठीक है। पीएसएम हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने चला हूँ जिनका एक आईएनएस सेट का, जिन पर एक स्पेसिफिक फोकस रहता है, ठीक है। माइक्रो फार्मा बायोकेमिस्ट्री है, इनका ओवरव्यू कर लेना है लास्ट के 2 डेज में। इमरजेंसी जितनी भी कंडीशन है, जिस टॉपिक का रट्टा मारना है, ठीक है, लास्ट के 2 डेज में हम क्या करते हैं कि यार ये टॉपिक तो है ना, मतलब है ना, एक ही दिन तो याद रखना अपने को एग्जाम टाइम के लिए, तो वो रट्टा मारने वाले टॉपिक कौन से हैं, ओके। सो लेट्स सी दोस टॉपिक्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी clinical focus areas. You must go through procedure in last 2 days, blood products, test, sport injuries, nerve injury, thyroid, vascular surgery, neurological exam, breath sounds, murmurs, लैब टेस्ट, जेनेटिक्स, ट्यूब्स एंड लाइंस, ओके। ये कुछ क्लिनिकल एरियाज हैं जिन पर क्या है, आईएनएस सेट का एक फोकस रहता है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इन सब चीजों को क्या है, देख लेना है। अगर आपके पास है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, तो ये तो आपको देखना ही देखना है। लास्ट के 2 डेज में मैंने रखा है इसको, आप लास्ट के 7 डेज में इसको कल से ही शुरुआत कर सकते हैं कि यार क्लिनिकल एरिया जो है मुझे अभी कल से ही देखने हैं। बेटर यही रहेगा कि लास्ट के 3 डेज में इनके ऊपर फोकस करो। उससे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेडिसिन हो गया है, सर्जरी हो गया है, उनका अगर कुछ मिसिंग है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कोई, हर एक स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया रहता है कि यस ये टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू जब अटेम्प्ट करने का बोला था मैंने, 15 डेज की स्ट्रेटेजी थी कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो, तो उसमें एक टॉपिक हाईलाइट जरूर हुआ होगा कि ये टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक है मेडिसिन का, ये टॉपिक है सर्जरी का, ये टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, और इससे एग्जामिनर बार बार के भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लो ना यार। अगर आपके पास 7 डेज में सब कुछ कर चुके हो तो उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक को एक फाइनल रैपिड रिवीजन दो, ठीक है। उसको एक दिन में सब कुछ, वो सब टॉपिक उठाओ, ठीक है। मेन सब्जेक्ट, छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं उनके भी उठा लो, कि क्योंकि छोटे मोटे सब्जेक्ट्स में होता क्या है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन नहीं देता एग्जामिनर,
घुमा फिरा के वहीं से सेम ही चीजें पूछता है, उसके 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या पता अगर वो सेम ही टॉपिक रिपीट हो रहा है तो उस टॉपिक को एक फाइनल पंच रिवीजन दे दो। ओके, यू मस्ट हैव दैट फाइनल पंच रिवीजन। और ये क्लिनिकल फोकस एरियाज हैं, इन पर फोकस करना है लास्ट के 3 डेज में। ठीक है, अगला क्या है, इमरजेंसीज कंडीशन। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन जैसे अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, जीआई ब्लीड, इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड, एर्थीमिया, शोक, स्ट्रोक, कोमा, ब्रेन डेथ, कार्डियक टेम्पोनेट, एसीएस, बीएलएस, एसीएलएस। ओके, एसीएलएस के अपडेट्स भी देख लेने हैं। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पैनक्रियाटाइटिस, ये कुछ टॉपिक हैं, ये कुछ इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिन पर क्या है, आइनास्टेट क्या है, क्वेश्चन कर सकता है। तो इन पर आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डेज, मैं बोल रहा हूँ लास्ट के 3 डेज क्लिनिकल टर्म इमरजेंसीज हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ये आप क्या है, इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि यस, ये टर्म तो देखनी है। एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, हेड टू टो, एक्यूट एब्डोमेन अप्रोच, टॉक्सिकोलॉजी एंड सब्सटेंस अब्यूज। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कुछ इमरजेंसीज हैं, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी, ये भी देख लेना है लास्ट के 3 डेज में। ठीक है, और अगला क्या है, RMT, रट्टा मार टॉपिक्स। ओके, अबाउट स्कोर एंड क्लासिफिकेशन, अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, अबाउट कलर कोडिंग्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन रहा है। ठीक है, पीछे एग्जाम में, आईना सेट के एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन था, कैनुला से रिलेटेड था कुछ। ठीक है, कैनुला का साइज पूछा हुआ था। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, बड़ी ही जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्टेन्स है पैथोलॉजी के, एफएमटी के, इंपॉर्टेंट्स है, जॉइंट कार्टिलेज। ओके, डेवलपमेंट माइलस्टोन, एम्ब्रियोलॉजी डेरिवेटिव्स, ऑल 19 सब्जेक्ट इमेजेस। अब इमेजेस में स्पेशली किस सब्जेक्ट की इमेज हमें टारगेट करनी है, माइक्रो, पैथो, डर्मा, रेडियो। ओके, ये तो है स्पेशल सब्जेक्ट, लेकिन मैंने बोला है कि 19 सब्जेक्ट की पीडीएफ उठाओ और सबके अंदर से निकल जाओ। 19 सब्जेक्ट की इमेजेस तो देखनी है, लेकिन ये माइक्रोपैथ डर्मा है, इनकी इमेज आपके पास श्योरली आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 सब्जेक्ट है, इनकी लास्ट के डेज में आप इमेज जरूर देखना, लास्ट के 3 डेज में। ओके, पीएसएम फिजियो के ग्राफ हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, फार्मा माइक्रो बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, ईसीजी, बीएमडब्ल्यू, एसटीआई किट्स, आईएससी, जीन, साइटोकाइंस। ओके, डोज लिमिट एंड यूनिट्स ऑफ रेडिएशन, कैंसर स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट। सो ये कुछ रट्टा मारने वाले टॉपिक्स हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, और ये कब करने हैं हमें, लास्ट का जो 1 डे 2 डे है उसी में करने हैं। तो ये 3 कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है, इमेजेस, इंस्ट्रूमेंट्स और रट्टा मारने वाले टॉपिक है ये कुछ। ठीक है, सारी इमरजेंसीज ये लास्ट के 3 डेज। ठीक है, 11 नहीं, 10, 11, 12 को, 13 को आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ करना हो, ठीक है, कुछ की स्ट्रेटेजी अलग रहती है कि मुझे बस, मैं तो करता ही हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ। ओके, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट कि 11, 12, 13 इमेज और सब कुछ करना है, उससे पहले मैं मेरे जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक है उनको देख लेना है। ठीक है, टोटल 7 डेज हैं, 7 डेज का ये प्लान हो चुका है हमारा। कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ। अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करते चलो, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरा खुद का एक प्लान है 15 डेज का, अब मुझे 15 डेज का मेरा प्लान था लेकिन मैं सिलेबस तो पहले ही कवर कर चुका हूँ, अब मेरे पास 7 डेज है, तो 7 डेज में क्या करूँ, तो 7 डेज में क्या करूँ, एक चीज तो पहली जो मैं बता ही चुका हूँ कि 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओके, और जो हाईलाइटेड टॉपिक है उनको रिवाइज करो। ठीक है, मेडिसिन के, सर्जरी के, ठीक है, हाईलाइटेड टॉपिक्स इनके निकाल दो एक बार अपने सामने से। और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, खासकर कि छोटे मोटे सब्जेक्ट या बोल दो फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल दो अपने नज़रों से एक ही दिन में। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर एक दिन में कवर कर दो। ठीक है, 7 डे बचे हैं, तो एक दिन फर्स्ट सेकेंड ईयर को दे दो, एक दिन मेडिसिन सर्जरी दोनों को। ठीक है, और एक दिन जो आपको क्या है, क्या बोलते हैं, जो छोटे मोटे सब्जेक्ट जो बच के हैं उनके टॉपिक। ओके, हाईलाइटेड टॉपिक्स बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के इसमें एक दिन दे दो, और मेडिसिन सर्जरी में एक दिन दे दो, और टोटल 3 डेज हो गए हैं और 3 डेज और बचे हैं।
ठीक है, 7th डे को तो एग्जाम ही है। अब इन 3 डेज में क्या करना है, इमरजेंसी हो गई, क्लिनिकल कंडीशन हो गई, इमेजेस हो गए, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो ये इन 3 डेज में करना है और 7th डे को आपका एग्जाम है। सो ये एक 7 डेज प्लान है, एक 7 डेज माइंड सेट है और इन 7 डेज में आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। फर्स्ट थिंग क्या है, स्टे पॉजिटिव। ओके, आपको आपके दिमाग को क्या है, एक ट्रैक पे रखना है, वो क्या है, पॉजिटिवनेस। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। ओके, और एक चीज याद रखनी है, खुद को डाउनग्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने ये एक प्लान दे दिया है मैंने 7 डेज का, एंड इफ यू आर हैविंग दिस प्लान देन यू विल विन दिस रेस। ओके, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ। ओके, दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं है यार मैं क्या हूं क्या है, जस्ट प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ। ओके, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। ओके, एक लाइन है, वो लाइन क्या है कि साइलेंस में काम करो, शोर आपका सक्सेस मचाएगा। ये लाइन बहुत सुनी होगी आपने, तो ये लाइन फिर मैं बोलता हूँ कि आपको साइलेंस में काम कीजिए, 7 डेज है और चलने दीजिए जैसा चल रहा है आपका, कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, और 7th डे को जो रिजल्ट होगा ना, 7th डे को जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, वो एग्जाम का रिजल्ट आपकी ही साइड आएगा एंड पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा अगर आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। 7 डेज की स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ, प्लान में बता चुका हूँ, यही आपको करना है। अगर आप यही करते हो then you will crack this exam for sure. So my dear friends, thanks to everyone for giving me this time, and I am giving you the best wishes that you give your best to your exam. आपको अपना 100% देना है, बाकी जो होगा वो तो होना ही है। खुद को डाउनग्रेड नहीं करना है कि 7 डेज में जो आप करोगे 200 क्वेश्चन जो आपको हर दिन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमें क्या है, एग्जाम में 3 आवर मिलने वाले हैं। सो वही 3 आवर आपको देने हैं खुद को 7 डेज के लिए। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, खुद से ही कर लीजिए। जीटी अगर जीटी में होता है कि यार मुझे इतने लोगों को देखना पड़ेगा, मेरा लीडर बोर्ड में नाम आएगा, ये वो, तो खुद से अपने 200 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उनको अटेम्प्ट कीजिए और 3 आवर का अपना टाइम रखिए, क्योंकि हमें एग्जाम में 3 आवर मिलना चाहता है, मिलेगा, उसी हिसाब से हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए कि 3 आवर्स का सारा खेल है। ओके, सो 3 आवर्स को अपने आप को एक शेड्यूल टाइम दीजिए 6 डेज के लिए। ओके, अपने आप को शेड्यूल कर लीजिए कि 7th डे को एग्जाम है, तब तक मैं अपना एक 3 आवर का एक टाइम पीरियड ले लीजिए। अगर ये एक शेड्यूल हो जाता है तो जो 7th डे को जब एग्जाम दोगे, 3 आवर के लिए बैठोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यू विल इजीली अटेम्प्ट दिस 200 इन 3 आवर्स एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन रीड करो और फटाफट निकलो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है कि यार टॉपिक उठा के या बुक उठा के खोल के देखने से रहे कि क्या क्या है, तो जस्ट रीड दैट एक्सप्लेनेशन एंड पास द टेस्ट क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जो गलत हो रहा है उसको रीड कीजिए और पास कीजिए, रीड कीजिए और पास कीजिए। ओके, और इसी तरह 6 डेज तक एग्जाम देने हैं। So my dear friends, this is my strategy, this is my plan for you. Best wishes again, and stay positive, work hard, work smart, and make it happen. You will surely crack this exam. Great wishes for your upcoming exam. Have a nice time, stay safe, stay healthy.